a quick recap of what we did in the previous session. I think this is the point where we started. No, not here. Even before this, in functions, we talked about cross product first. I told you A cross B can be written like this, B cross A can be written like this. Cardinal number of them will be equal, but A cross B will not be equal to B cross A. Then I gave a simple example of A cross A, then A cross A cross A. Cardinal number will be equal. Also, cardinal number of A cross B will be equal to product of the cardinal numbers. ऐसे निकालते हैं, ठीक है? अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या था अंकित? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था ना, 2 to the power of Sir, n. 2 to the power. Right, right. 2 to the power of n. So, do you remember I told you that relation is a subset of A cross B? Right. So, if I ask you number of relations that can be made for this A cross B, तो कितने relations बनेंगे? There is nothing but 2 to the power of number of elements in A cross B, correct? और A cross B में कितने elements होते हैं? 2 to the power of cardinal number of A multiplied by cardinal number of B. I hope you understand. So number of relations of for A cross B is nothing but 2 to the power of cardinal number of A cross B. लिख लो 2 to the power of cardinal number of A cross B. This is a very important thing. Many a times you will get on questions. Application भी आता है. Copy it. Wait, sir, wait. Yeah, copy कर लो. So I think now we have enough number of people. Please mark your attendance. Ankita, Anvesha, Mehul. Present, sir. All right, Mehul. Yes, sir. Raj. Okay. So we are just revising of what we did in the previous session. I suggest Mehul, Raj, those who missed the functions 1 by 4, the first class, kindly go through the recordings. Even go through the recordings on sets first, then functions, and then today's class. Okay. So coming to the next, I told you how to write A cross B. This one, how to write the relation and difference between relation and A cross B. Relation is a subset of A cross B. Then I told you guys, ये होता है मैपिंग, है ना? मैपिंग से हम लोग समझते हैं रिलेशन. So eventually I took some examples also on domain and range. What is the domain? The inputs allowed for this relation is called the domain. The outputs which will come out, they are called the range. Then I said domain is all inputs, actual inputs. Range is the all outputs, the actual outputs. And the codomain, CD stands for codomain. They are the all possible outputs, which is nothing but your entire set B. Then I gave a simple set. Relation is represented like this. Then I asked the domain, range, and the codomain. Domain will be all the first elements, 3, 1, 2, they are the inputs. And range will be all the second elements, they are the outputs. Here the output is actually equal to the codomain. Next came functions. I said that function is again a special kind of relation. It is actually a subset of relation. So in relation there will be some condition. In function there are some more defined conditions. 2 points to remember in functions. Always no element in set A will be without this arrow. So because set A are the inputs. So this is a function. This one is not a function because 3 is an element in set A without the arrow. Also, given one input, there cannot be multiple outputs. One to many function is not defined. Many to function is defined. So this is not a function. This is also not a function because 3 is left. 3 sare hai, so this one is a function. Then I actually explained with
With an example, I told you in functions one to many mapping is not allowed. So many to one is allowed. Input will have definite mapping. These are the things I had mentioned. Then I asked people which of the following is a function. Right? They said this is not a function because one to many hai. It is not allowed. Then I introduced the concept of image and pre-image. I told that X is called the image of one. जहाँ arrow आया है वो कहलाता है image. जहाँ से आया है वो कहलाता है pre-image. So I say one is the pre-image of X and stuffs like that. Then I told about the domain and range of the and the codomain of the function. Domain is the inputs. जहाँ से arrow आया, जहाँ पर arrow आया, they are called the range. The entire set B is called my codomain. Next, I told that fx is equals to x plus 1. X is called the input. X plus 1 is the output. So, ये है function of x. So, this is called a function of x is equals to x plus 1. When I say function of 1 by x, then I say function of 1 by x is equals to this particular thing. I gave an example. I drew the line. X is equal x plus 1. I asked domain, they said all the real numbers on the x-axis. So x-axis actually gives me an idea of the domain. The y-axis gives me the idea of the range. See, here the domain will be entire real numbers, range will be entire real numbers, and the codomain also the entire real numbers. Then I told you about the square root. अंदर में हमेशा positive होता है. So domain is nothing but all those values of x for which the function is defined. So here you can see that inside the value has to be greater than equal to 0 because अंदर कभी -1 जैसा कभी आपने नहीं देखा होगा, -5, -3. So अंदर का value हमेशा positive होता है. So there is another way of writing it, square bracket -1 comma infinity and stuffs like that. Then I gave you this. I asked domain क्या होगा. I also taught you how to find the range. In order to find the range, what you have to do? Then I asked you to remember these graphs also. Root x का graph ऐसा होता है, ध्यान रखना. X square domain, log x square on stuffs like that. Range is all about minimum and the maximum values allowed. In this graph, green color, you can see that the minimum value allowed is 0 and the maximum will go till infinity. Log x to the base a. There are three important things to understand in log. Open your log chapter, you will see that these things I have already discussed. If you see the graph of log is like this, it is the entire y-axis which will be covered, the yellow color, and that is the range. If you see the x-axis, only the graph is on the right hand side. So the domain of this function is nothing but 0 से infinity. You can see that 0 is curve bracket. Curve bracket means 0 is not allowed. You can also call this as all real positive number except 0. That's the domain. And the range will definitely be all real numbers. Next comes mod x. Mod x का ग्राफ V शेप होता है, आपको याद रखना है. ये ब्लैक कलर में जो ग्राफ है ये mod x का ग्राफ है. अंदर जब +5 हो जाता है तो ये राइट के तरफ, सॉरी +5 होता है तो लेफ्ट के तरफ शिफ्ट करता है. यार कल गलती हो गया लगता है ना. +5 होगा तो ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा 5 यूनिट्स. शिफ्टिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे. ये किसका ग्राफ है? fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x + 5 का ग्राफ. अंदर में +5 होगा तो लेफ्ट की तरफ 5 यूनिट, अगर -5 होगा तो राइट की तरफ 5 यूनिट. However, seeing the graph, you can see that the domain is entire real numbers for this green color or the mod x also, but the range is from 0 to infinity. So the minimum value is 0 and the maximum is infinity. Then I gave this particular question. I said inside value would be greater than equal to 0. इसका domain कैसे होगा? Then I told you guys to remember this graph is called hyperbola 1 by x. So you can see that the domain is entire real number except the 0. And the range is also entire real numbers except 0 because 0 नीचे allowed नहीं होता है. Okay. Then I introduced that how do you find the range of a function. First of all, find the domain. Then let that function be equal to y. From there, make x the subject of the formula. Then this x is defined for what values of y. So you can see that this x is defined for all the values of y
Therefore, for this function, the range is entire real numbers. I gave another example. Again, I asked to find the range. You wrote equal to y, made x as the subject of the formula. Then what value of y such that x is defined? All real numbers. Then again, this question, you made it equal to y, you got x, and you realize that y is not equal to 0. So the range will be entire real numbers minus that 0. One more example, and you people told me the range. That's it. That is the recap of the previous session. Write all okay in the chat box if you think this revision was good enough. All okay. That's good. Very good. Now, today we are going to do some theory part and then the questions on that. First लिखो पहला composite functions. पहला लिखो composite function. Composite function. It is nothing but function of functions. What is composite function? Function of the functions. A very important one, okay? जैसे कि मान लो f(x) दिया हुआ है x plus 1, gx दिया हुआ है 1 by x plus 3. Now these people can ask you what is the value of f of x. इसका मतलब क्या होता है? देखो f of o है, o मतलब of, फंक्शन ऑफ fx. यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है. अगर f of x होगा तो f के अंदर इसको आप ना ऐसे भी लिखते हो. इसका मतलब अगर आप ग्रीन कलर मेरा देखो तो ये जो है ये इनपुट है. ये इनपुट है मतलब क्या कि कौन सा फंक्शन इनपुट है? तो f के अंदर आपको पूरा fx का वैल्यू लिखना है, मतलब x plus 1. जब fx का वैल्यू x plus 1 है तो x plus 1 जब होगा तो सिंपली यू हैव टू रिप्लेस दिस x बाय x plus 1. सो लिख लो सिंपली रिप्लेस दिस x बाय x plus 1, क्योंकि ये आपको x plus 1 का वैल्यू निकालने बोल रहा है. तो इस x के जगह आप लिखो x plus 1 plus this 1. So this becomes x plus 2. Right? Okay, if you understood what is f of इसको fof बोलते हैं. Fof या तो f of x plus 2. Right? Okay, if you understood this one. Everybody. कार्तिक समझ में आया? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. अगर आपको बोलता है g of x, gog, इसको gog बोलते हैं. तो अगर आप देखो g of x क्या है? g of x is given as 1 by x plus 3. तो gog मतलब कि g of ब्रैकेट के अंदर देखो दोबारा gx है ना, इसका मतलब ये होता है. ये gx का वैल्यू क्या है? g of 1 by x plus 3. ध्यान से समझना. अब ये g of x plus 1 by x plus 3 है, मतलब जहां x है वहां क्या रिप्लेस करेंगे? 1 by x plus 3. सो रिप्लेस x को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 by x plus 3. कहां पे? यहाँ पे. दैट विल गिव यू, तो जहां पर x है वहां पे लिखो ये वाला पोर्शन 1 by x plus 3 plus 3. इसको सिंप्लीफाई करो, x plus 3 ऊपर जाएगा, आई थिंक नीचे हो जाएगा 1 plus 3x plus 9. ये सॉल्व करोगे तो x plus 3 by 3x plus 10 होगा. राइट? ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड gog कैसे निकालते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड फ्रॉम कंपोजिट फंक्शंस. जल्दी जल्दी अंकिता.
Yeah, people, I request you guys to keep the communication bi-directional so that we have a richer learning experience. So when you are writing okay, that means you have copied it and you want to go to the next. नेक्स्ट मान लो अगर आपको पूछता है fog of x, तो आपको याद है f of x क्या था, x plus 1 था क्या? हाँ, एंड g of x मैंने दे रखा था 1 by x plus 3. ये देखो fog है, f of g of x मतलब क्या होता है ये f ब्रैकेट के अंदर g of x, मतलब कि जो f है इसका इनपुट अब gx है. gx क्या है 1 by x plus 3. मतलब अब इस फंक्शन f वाले फंक्शन में x के जगह जहां जहां x था उसकी जगह आप क्या रिप्लेस करोगे 1 by x plus 3. सो लिख लो रिप्लेस x by 1 by x plus 3. So as such you will get 1 by x plus 3, x के जगह 1 by x plus 3 plus that 1, ये वाला 1. So इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक इट विल कम x plus 4 divided by x plus 3. Right? Okay, if you have understood. अंकित समझ में आया? यस सर. वंडर. इसके बाद एक लास्ट आता है, इसमें आपको पढ़ना है गॉफ. गॉफ मैंने बताया है क्या अभी तक? ऑफ हो गया, हाँ गॉफ, फॉग का उल्टा गॉफ, मगर उसका उल्टा नहीं करते हैं हम लोग. अब इसको वैसे ही लिखेंगे g ऑफ, अब इनपुट हो जाएगा f ऑफ x. अब ये f x इनपुट हो जाएगा, तो f x का वैल्यू क्या है x plus 1. अब g में 1 by x plus 3 है, तो जहां जहां x है वहां वहां x plus 1 से रिप्लेस करेंगे. तो लिखो रिप्लेस x by x plus 1. So as a result you will get 1 by x plus 1, जी नीचे में x है, plus that 3, it becomes 1 by x plus 4. You can see that gauge of x is not equal to fog of x. They are not equal. Correct? चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. fx लिखो 3x plus 4 by 5x minus 3. Find f of x. दोनों f सेम है, जल्दी बताओ. ऑप्शंस दे रहा हूं, x 0 1 none. वन है सर. 1 ठीक से देख भाई. सॉरी सर, यस है. एक सेकंड. अंकिता क्या आ रहा है? राज, मेहुल, okay. Ankita is getting x. All right. Answer is x
That's correct. I don't know why you guys made a mistake. Just check it out. F of 3x plus 4 by 5x minus 3. जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ये वाला पोर्शन पूरा डालना है. तो अगर आप देखो 3 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 4 बाई 5x माइनस 3 इसको सॉल्व करना आपका काम है. आंसर विल बी x. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व इट. अंकित क्वेश्चन पढ़ना जरा. Others started giving you 1 minute time. If x is equal to x plus 5, gx equal to x cube minus 3, then g of fog is p is. Correct. Go ahead. Your time starts now. Okay, your time is up. What is the answer? No one. Okay. Let us see. I have not given you the options. Still, fx is given, gx is given. What is the meaning of g of f of g of 3? अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने 3 दे दिया. फॉग. तो आप ना इस तरफ से करना, पहले इस राइट हैंड साइड से करना. पहले निकाल लो g of 3. सो अगर g of x ये है, देन व्हाट इज g of 3? 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 माइनस 3 6. इसका मतलब ये हो जाता है g ऑफ f ऑफ इसका वैल्यू दैट इज 6. ध्यान से देखना जी. अब क्या करो, f ऑफ 6 का वैल्यू निकाल लो. तो f ऑफ x इज x प्लस 5, देन व्हाट इज f ऑफ 6? 6 प्लस 5 11. So now you have to find g of 11. G of 11. G of x is given. What is g of 11? 11 square minus 3, 121 minus 3, 118. Right, okay, if you have got it, if you have understood. Easy? Let's do one CAT question in the same line. Check this out. Go ahead. Giving you 2 minutes for the entire 4 questions. Your time starts now.
Okay, your time is up. Any update? सर Disha, 3 और 4 हो गया सर, 5 और 6 तो कुछ बना नहीं। अच्छा अच्छा. Disha, are you able to see the screen? Yes, sir. You joined late. You forgot what? No, sir. Sir, I just came home. Oh, okay, that's fine. Chal, let us see this particular question. F of x is given 2x plus 3. G of x is given. Any answer for first question number 3? बी होगा सर। D. यस सर। Okay. Solve किया क्या? यस सर। एक साल है। अच्छा, मतलब सेम आ रहा है. हाँ, दोनों का सेम है। अच्छा अच्छा यार, मैं अगर ऐसे सोचूं कि इसको एक्चुअली सॉल्व करके तो आ ही जाएगा, बट अगर इफ आई सी दैट x इज इक्वल्स टू 3 पर ये वाला जीरो हो जाएगा. मतलब कि x इज इक्वल्स टू 3, अगर कोई मुझसे ये निकालने बोल रहा है, अगर मैं ये चेक कर लूँ f ऑफ g ऑफ 3, समझ रहे हो, शायद थोड़ा आसान पड़ेगा. देखो f ऑफ g ऑफ 3, g ऑफ 3 क्या होगा? 0. तो व्हाट इज f ऑफ 0? f ऑफ 0 का वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस 3 होगा. यानी मेरा आंसर 3 आएगा, क्योंकि ये x के लिए ट्रू है. तो फॉर अगर मैं x का वैल्यू 3 लूंगा तो मेरा आंसर 3 आना चाहिए. तो ऑप्शन 1 ये नहीं होगा. x का वैल्यू 3 पर ये भी 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा. ये 1/3 हो रहा है, ये भी नहीं होगा. तो आंसर ये होगा. क्या बोलते हो अंकित? सही बात है। ये शायद आसान पड़ा, आपका पेपर भी नहीं भरा होगा. करेक्ट? Right, okay, those who have understood. I know I have gone by a shortcut, but I think this is a better way. That's what we have to learn. जो मैंने बता दिया ठीक है, but I have assumed. Now, next question number 2. X का वैल्यू निकालना है जहां f of x will become equal to g of x minus 3. तो आई थिंक अगर मैं ऑप्शन से भी जा सकता हूं चाहूं, तो जैसे कि x का वैल्यू -3 होगा. So Ankita is getting D. Is it D? Anybody else? सी है सर, -4। -4 पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या? चलो पुट करते हैं. अगर x -4 है तो व्हाट इज f ऑफ -4? -4 -8, -8 प्लस 3 इज -5. एंड व्हाट इज f ऑफ -4 -3? मतलब g ऑफ -4 -3 मतलब g ऑफ -7. व्हाट इज g ऑफ -7? -10 मतलब -7 -3 -10/2 is -5. yes, ये सेटिस्फाई कर रहा है. देन आंसर इज दिस. Ankita, check out. Anvesha, Disha, is that okay? Abhishek? Alright. Disha, could you follow this? Sir, could you please repeat it? Yeah, see, did you understand the composite function just now which we discussed? F of g of and all those things. So, here we have gone by the option. We are checking कि x का value अगर -4 है, I have to find f of -4. f of -4 मतलब replace x by -4. -4 into +2 is -8. -8 plus 3 is -5. LHS is -5. नेक्स्ट राइट हैंड साइड अगर x -4 होगा तो -7. तो x का वैल्यू g में -7 लिखोगे तो ये भी -5 आएगा. तो ये सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर होगा. एक्चुअल तरीका से जाओगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू x का वैल्यू g x -3. x के जगह x -3 रिप्लेस करोगे, इट विल बिकम x -6/2. सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू. करेक्ट? चल, next question, the third one. What is the answer for the third one? I think all the options are distinct. तो अंकित ध्यान से देखो इसको कि f of g of x इतना बड़ा है, उधर भी इधर है. f of g मतलब कि पहले तो मेरे को ये फाइंड करना है मल्टीप्लाइड बाय, ये x नहीं है, ये मल्टीप्लाइड बाय है. आई मीन नॉट मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड नहीं है यार, क्योंकि यहाँ भी वही सिंबल है, यहाँ भी वही सिंबल है. ये f ऑफ नहीं मल्टीप्लाइड ही है. ओके,
There is little confusion, but anyway, what we will do, we will take x is equals to 3. ध्यान से देखना जी, मैं इस तरफ से सॉल्व कर रहा हूं, इसको पहले सॉल्व करूंगा. f of g of 3. fog एक बार पहले fog निकालो. What is f of g of 3? हमने ऑलरेडी निकाला था, 3 आया था ना. f of g of 3 देखो ऊपर 3 आया था. इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो 3 है. फिर से आएगा f of g of 3. f of g of 3, ये वाला पोर्शन 3. What is f of g of 3? Again 3. अब आपको ये निकालना है g of f of g of f of 3 इंटू नहीं है, ऑफ 3, यानी इसके बाद है 3. तो क्या लिखेंगे? g of, ये वाला कॉपी कर रहा हूं, g of f of g of f of 3. गॉफ कितना आया था अभिषेक, अंकित? 3 आया था ना, क्योंकि दोनों तो सेम था. तो व्हाट इज गॉफ ऑफ 3? व्हाट इज गॉफ ऑफ 3? 3. Yes, sir. And what is g of 3? 0. 0, sir. People, थोड़ा सा आपको लगेगा ये सर क्या कर रहे हैं, मगर आप मेरे साथ सोचो, सिर्फ देखो मत मूवी की तरफ. f g of 3 is 3, then what is g of, or f gauge of 3 is 3, then what is g of 3? G of 3 will be 0, so this portion is 0. Then what is f of 0? 3. अब ये वाला आ जाओ, f of 0 is again 3, then what is gauge of 0? Again, I mean, f of 0 is 3, not gauge of 0, gauge of 3. What is gauge of 3? Again 3. मतलब कि अगर मैं x को 3 मानता हूं तो आंसर मेरा x ही आएगा. ऑप्शन ए. नहीं, अगर x को 3 मानता हूं 3 का आ रहा है सर, आंसर 3 स्क्वायर आ रहा है ना, इनटू है ना. इज इट इनटू? आपने तो बोला बीच का इनटू है, तो इस साइड भी x आएगा, उस साइड भी x आएगा. करेक्ट, इनटू है कि क्या है, मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, बिकॉज वो इनटू नहीं लग रहा है, बट हो भी सकता है इनटू. मैं एक बार देख, रुक जा. यस, इनटू है यार, इनटू है, दैट्स करेक्ट. क्योंकि ये वाला पोर्शन निकालने के बाद मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पोर्शन, ये वाला भी 3 आया, ये वाला भी 3 आया. 3 into 3 is 9, दैट्स करेक्ट. क्योंकि ना अगर इनटू नहीं रहता ना तो ये लोग इस तरीके से ब्रैकेट में नहीं डालते उसको. आंसर इज x square. Pardon me. Right? Okay, if you have understood. नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ आंसर. What is gauge of 3? 3. एक्चुअली वो इनटू के जगह ऑफ रहता, जैसे ओ रहता, समझ रहे हो? ये इनटू है, मैंने जो गलती से ऑफ कर दिया था तो वो ओ रहता, तब हम लोग वो करते हैं. जब क्रॉस है तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन 3 है, गॉफ ऑफ 3 इज 3, मैं x का वैल्यू 3 मान रहा हूँ. एंड व्हाट इज f ऑफ fog of 3? What is fog of 3? Again 3. Then what is f of 3? 3 to the 6, 6 plus 3, 9 है. बट प्रॉब्लम क्या है, x is equals to 3, 9 यहाँ भी आ रहा है, और x का वैल्यू 3 to the 6, 6 plus 3, 9 यहाँ भी आ रहा है. मतलब ये तो नहीं होगा आंसर, ये वाला भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है. समझे? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट, अन्वेषा? उसके लिए नेक्स्ट क्या कर सकता हूँ? थोड़ा सा अगर रिस्क ले सको, टाइम कम है तो वो लो, वरना आप x का वैल्यू कोई और चेक कर लो. 6 ले लो, मतलब 6 मत लो, कोई 5 ले लो. 5 to the 10 13, हाँ, जो इंटीजर आ जाए. 5 minus 3 2, 2 by 2 is 1.
अब निकालो जरा x का वैल्यू 5 लेकर के इन दोनों में से फाइंड आउट करो, निकालो जल्दी। फोन आ रहा है, मैं उठा लूं। हेलो, या यस दिशा, एनी अपडेट? 5 अगर लोगे, x का वैल्यू 5 लेना, तो इन दोनों में से मुझे डिसाइड करना है, ये तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं। 5 लो तो व्हाट इज गॉफ ऑफ 5? f ऑफ 5 क्या है? मामा f of 5 represent 9 plus 3 13. Then what is g of 13? 13 minus 3, 10 by 2 is 5, right? Now find out f of g of 5. And what is g of 5? 1. Then what is f of 1? 1 करोगे 3 plus 2 5. So again you will find f of 5. What is f of 5? 5 to the 10 plus 3 is 13. यानी आंसर में 13 आना चाहिए। 5 स्क्वायर 25 होगा, ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। राइट, ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड। एक्चुअली जो मेथड से मैंने बताया है ये शॉर्टकट हुआ, अदरवाइज अगर आप एक्चुअली एक्स विक्स क्लिक करके बनाओगे ना बहुत टाइम लगेगा। राइट, ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड, मेक इट फास्ट। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। नोबडी इज राइटिंग एनीथिंग। क्या हो गया? लिख भाई। चलो ये ट्राई करो एंड give me 1 minute, I'll be back. Try this question. Yeah, your time is up. What is the answer? Yes, sir. ये आ रहा है? Yes, sir. This is +1. तो क्या वैल्यू लेकर के कर रहे हो कि प्रॉपर सॉल्व करके? सॉल्व कर दिया सर, सॉल्व में तो ज़्यादा इजी आ रहा है फिलहाल। अच्छा, कोई बात नहीं। That's fine. Answer is A, is it? Let me just check. A बोल रहे हो ना अंकित?
Yes, sir. Yes, A is correct. Anybody else? You can try it at home. So वैल्यू लेकर के भी x इज टू 1 पे अगर करोगे ना अंकित, तो आई थिंक ज़्यादा आसान पड़ेगा. क्या है कि x इज टू 1 ले लो, तो ये वाला 0, इस तरीके से सारा के वैल्यूज निकाल सकते हो. और ऊपर में निकालो g ऑफ f ऑफ 1. f ऑफ 1 क्या होगा? g ऑफ 1. 0. g ऑफ 1 क्या होगा? 2. यानी ऊपर में आ गया 2. अब नीचे में क्या G आएगा? of 1 कैसे हो रहा है? G of 1 0 आएगा सर. नहीं, ये प्लस है. अच्छा, वो वाला प्लस है क्या? ये माइनस है. 3x माइनस 2. वो x के स्क्वायर प्लस 1 है क्या? सॉरी सॉरी, ये प्लस नहीं है, ये भी माइनस ही है. ये एक्चुअली G of 1. हाँ हाँ, ये भी माइनस ही है. सॉरी, बिकॉज वो दिख नहीं रहा था यार, हेजी था ना. आई चेक्ड विद द बुक, इट्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो g ऑफ 1 निकालो. 0. 0 आई थिंक ये ऑप्शन में x इक्वल्स टू 1 पे 0 यही आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा है. समझे? Yes, sir. चल, अन्वेषा समझ में आ रहा है? राज, मेहुल, कार्तिक कुछ हाँ ना नहीं बोल रहा है यार. चल, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझना. मान लो एक मशीन है, मशीन का नाम फंक्शन है. ये कुछ इनपुट लेता है तो आउटपुट देता है. अगर ये जो आउटपुट आया है, दिस पर्टिकुलर आउटपुट, अगर किसी फंक्शन में दूसरा फंक्शन g ऑफ x बोल देता हूं इसका नाम, किसी दूसरे फंक्शन में इनपुट बन जाए यही आउटपुट, this particular output, if it becomes the input of the other function and the output that comes out is this particular input, then fx and gx are inverse of each other. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना. मान लो एक फंक्शन है fx दैट्स इक्वल टू x प्लस 1. इनपुट है x, आउटपुट है fx. 0 दिया 1 आया, 1 दिया 2 आया, 3 दिया 4 आया. ठीक है. चलो, अब मैं समझता हूं कि ये वाला मेरा इनपुट है और ये वाला मेरा आउटपुट है. मान लो एक फंक्शन में g ऑफ x लिखता हूं जिसका वैल्यू है x माइनस 1. ध्यान से समझना, इसका इनपुट क्या है x और इसका आउटपुट क्या है x माइनस 1, g ऑफ x है ना. अगर x का वैल्यू 1 देंगे आउटपुट क्या आएगा? 0. x का वैल्यू अगर 2 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1. इफ x इज इक्वल्स टू 4 देन आउटपुट इज 3. अभिषेक ध्यान दो, इस फंक्शन का जो इनपुट है वो इस फंक्शन का आउटपुट है, और जो इस फंक्शन का आउटपुट है वो इस फंक्शन का इनपुट है. कैन यू ऑब्जर्व दिस? Therefore, gx is nothing but f inverse of x. Right? Okay, if you have understood the fundamental meaning, कैसे निकालना है मैं नेक्स्ट बताऊंगा. फंडामेंटल मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन समझ में आया कि नहीं? लिखो ओके इन द चैट बॉक्स. बहुत ही बच्चे तरीके से मैंने समझाया है. दिशा, डिड यू अंडरस्टैंड?
To illustrate this, I am taking a simple example to find the inverse of a function. Okay, allow me to take this screenshot. पहले डेफिनेशन वाइज बनाने समझने की कोशिश करो, एंड देन कैसे इनवर्स फंक्शन निकालना है मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को. जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, आई थिंक दिस इज 3x + 5 डिवाइडेड बाय x + 1. x + 5 है, 3x + 1 है, ऐसा कुछ है. अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं इनवर्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल. अगर मैं बोलता हूं कि भाई इसका इनवर्स क्या होगा, तो वो लोग बोल देते हैं इसका सर ये वाला, ये इसका इनवर्स है. नहीं, ये गलत है. इनवर्स इज नॉट रेसिप्रोकल. इनवर्स फंक्शन इज नॉट रेसिप्रोकल. 3 का पावर -1 इज 1/3. 3/4 पावर -1 इज 4/3. दैट्स ओके. बट ये फंक्शन का जब पावर में -1 होता है तो ये है इनवर्स फंक्शन. कैन समबडी टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अभिषेक बताओ. यस सर. बताओ इसका आंसर. डी आएगा सर, डी. डी. All right, Ankit has got it. Disha, how about you? C. Abhishek is getting C. चल, अंकित कैसे बना रहा है? वैल्यू पुट कर दिया सर. कौन सा वैल्यू? 1. ऑल राइट, इन्होंने निकाला f(1). कितना आया? 4 आया सर. 8, मतलब 3 + 5 8, 8/2, दैट इज 4 आया. मतलब कि इन ऑप्शंस में इनवर्स वही होगा जो f इनवर्स ऑफ 4 इनपुट लेगा, जो इसका आउटपुट आया, समझ रहे हो? उसको ये अगर इनपुट लेगा तो आउटपुट आना चाहिए 1. तो इन सब ऑप्शंस में शायद इन्होंने x का वैल्यू 4 पुट किया. 4 + 5 9, 9/12 13, ये तो नहीं आएगा. 5/2 ये भी नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा. देखो, 5 - 4 1 and 4 - 3 1 1 1. Did you understand the meaning of inverse function? This is correct. Everybody right? Okay, कुछ तो लिख यार. Did you understand? Okay, Abhishek wants to repeat. Chal, check it out. Abhishek, just now I explained you the meaning of inverse function, which simply means that the input of a function f(x), if it becomes the output of that function gx, and output of this function becomes the input of this function gx, then the functions are called inverse of each other. मतलब ये क्वेश्चन मैंने दिया कि भाई बताओ इनमें से इनवर्स कौन सा है, तो वेरी स्मार्टली समबडी इसमें x का वैल्यू 1 ट्राई किया, मतलब इसका इनपुट ट्राई किया 1, तो आउटपुट इनका आया 4. अब ये वाला आउटपुट इनवर्स फंक्शन का इनपुट डाल करके ये वाला इनपुट किस में आएगा, 1 किस में आएगा, वो मैच किया. करेक्ट. देन ऑप्शन से गए, ये सारा एलिमिनेट हो गया. दिस इज द करेक्ट आंसर. इसमें 1 आ रहा है. अब एक स्टेप लिख लो जी, हाउ टू फाइंड, how to write the inverse function, how to find the inverse function. inverse function लिखते कैसे? सिंपल एग्जांपल, जैसे कि fx, कौन सा क्वेश्चन लिया था यार मैंने, राज देखना यार. fx एक लिया था ना, क्या नाम था, x + 1 लिया था, छोटा सा एग्जांपल. x + 1 का इनवर्स फंक्शन है x - 1. मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे लिखा. क्वेश्चन इज कि f इनवर्स ऑफ x क्या होगा. क्वेश्चन लिखो कि भाई f इनवर्स ऑफ x क्या होगा. ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करो, बहुत इजी है. सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है इसका नाम दे दो y. जिस तरीके से रेंज निकालते थे वही करेंगे. y = x + 1. स्टेप नंबर 1 कि लेट दैट फंक्शन बी इक्वल टू y. स्टेप नंबर 2, x को लेफ्ट में रख करके, जो वेरिएबल है, जो इनपुट है,
इक्वेशन को लिखो कि x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा y माइनस 1। अब ये जो x आया है, अंकित ध्यान से देखना, ये जो x आया है इसी का नाम दे दो f इनवर्स x, मतलब इस इक्वेशन का नाम दे दो f इनवर्स x। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस करो x को f इनवर्स x से। स्टेप नंबर 4, जो y है उसको x से रिप्लेस कर दो, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप होगा f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। दिस इज f इनवर्स ऑफ x। एक और एग्जांपल लेते हैं। डोंट पैनिक, जस्ट टेक डाउन द सेकंड एग्जांपल। मान लो fx दिया हुआ है 2x प्लस 1 बाय x प्लस 5। मुझे कोई पूछ रहा है कि f इनवर्स x निकालो, ऑप्शंस नहीं देंगे। अंकित इधर देखना, दिशा, अगर ऑप्शन दे रखा है तो ये सब हेडेक नहीं लेना, समझ रहे हो, क्योंकि मेरे आंख के सामने f इनवर्स दिया हुआ है, मुझे बस वैल्यू पुटिंग से इसको बनाना है। मगर अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है और समटाइम्स यू रिक्वायर, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वैल्यू पुटिंग से नहीं आ रहा है, तो क्या करना, सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको क्या करेंगे, इक्वल टू y कर लो। स्टेप नंबर 1, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 बाय x प्लस 5। फिर सर ने कहा कि x को लेफ्ट में ले आओ और y वाला पोर्शन को राइट में ले आओ। मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, मतलब कि xy प्लस 5y 2x प्लस 1। x वाला पोर्शन इधर लाओ, y ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 1 माइनस 5y। गलत कर दिया मैंने, क्या हो जाएगा जी, अगर x को ब्रैकेट बाहर रखना है तो y माइनस 2 1 माइनस 5y। यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 5y डिवाइडेड बाई y माइनस 2। मेरा आंसर आ गया। बस अब थोड़ा सा रीअरेंजिंग करना है कि x को रिप्लेसमेंट करना है। x को रिप्लेस करो f इनवर्स x से और y को रिप्लेस करो x से, तो आंसर क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाई x माइनस 2। राइट, ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड। अंकिता, अन्वेषा, क्या बोलती हो, f इनवर्स x निकालना समझ में आ गया, कैसे निकाल रहे हैं? प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड f इनवर्स x ऑफ, फाइंड f इनवर्स x, fx दे रखा है 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। f इनवर्स x निकालो जल्दी, ये वही क्वेश्चन है बट आप तरीके से निकालो जल्दी से। दिस इज द लास्ट एंड मैं एक और क्वेश्चन पेस्ट कर रहा हूँ ऑन दिस पर्टिकुलर f इनवर्स। लिखो डन फटाफट। डन, अंकित डन, अंकिता डन। व्हाट अबाउट अदर्स, राज, मेहुल, बहुत प्यार से समझाया यार मैंने f इनवर्स, सबका आ जाना चाहिए। चल, वेरी गुड।
So I may skip this and assume that you have got the answer for this. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. मैं क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ ढंग से. एफ एक्स लिख लो. एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3. वेरी गुड राज. जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना पता है, एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स ऑफ 7 का वैल्यू कौन सा. जल्दी. सर एक डाउट है सर. हाँ जी बोलो ना. एफ ऑफ जी पूरा का इनवर्स निकालना है ना. हाँ, पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लो, फिर उसका इनवर्स के टर्म्स में सोचो. डन. ऑल नहीं आया. Nobody. All right, time is up. Should not be so difficult. Check it out. What is f of g of x? F of x cube plus 5. Replacing x by x cube plus 5, I think it will be 2 times of x cube plus 5 minus 3. So it will be 2x cube. 5 दूनी 10 minus 7. So this is fog of x. एक इनपुट टेबल बनाओ, एक आउटपुट टेबल बनाओ. x 0 पुट करो, आउटपुट आएगा 7. इसका मतलब f इनवर्स वाले में 7 पुट करने पे आउटपुट आना चाहिए 0. 7 पुट करने पे आउटपुट 0. नहीं समझे? अरे तो क्यों लगा टाइम भाई, ये तो बहुत इजी था. ओके अन्वेषा गॉट इट. चलो एवरीबॉडी राइट. ओके जल्दी जल्दी लिखो. आगे बढ़ते हैं. नाउ we will do some questions on functions which are very general. I mean, nobody requires any specific theory or formulae for all these questions, but they are very common of its kind. Write down the first one. जैसे कि fx plus 2 times of f of minus x का वैल्यू है 3x plus 2. Then they will find the value, then they will ask you to find the value of f of 1 2 5, suppose something they are asking f of 10. Go ahead, giving you 1 minute to give it a try. Your time starts now. Your options are none. Make it fast.
Any answer? Your time is up. All right. Now, everybody, please listen very attentively. Something very important I am going to discuss from this particular question onwards, because they are very general in kind, so they have been a favorite choice among the paper setters. जैसे कि आपको चाहिए f of x, मतलब f of x अगर कोई दे दे x cube plus 1, तो x का वैल्यू 10 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा. Something like that. The problem is with this fellow whose input, अगर आप x पॉजिटिव दोगे, क्योंकि x तो आपको 10 चाहिए ना, f of 10 चाहिए, तो 10 डालोगे तो f of minus 10 रह जाएगा. So what I'll do, I'll try to eliminate this fellow. I will take the help of simultaneous equation. So what is that? यार fx plus 2 times of f of minus x is given as 3x plus 2. What if I replace x by minus x? I will find f of minus x plus 2 times of f of x is equals to minus 3x plus 2. This is a new equation. I want to keep f of x, but I want to eliminate this f of minus x. My school knowledge says multiply this fellow by 2, such that you will have 2 times of f of minus x, making this portion same. This one is 2 multiplied by 2 will make it a 4. 2 multiplied by this will make it minus 6. And 2 multiplied by this also, entire thing will be multiplied by 2. So this will become plus 4. Right, agree. Now what I'll do, there are two equations, equation 1 and equation 2. I will subtract them. This minus this, 4x, 4 of f of x minus f of x. I'll get f of x 3 times. और ये वाला पोर्शन कट जाएगा. And this minus this will become 9x minus 2. How interestingly, I have extracted f of x from this particular expression which contained f of minus x. Somebody is asking me f of 10. I will put x is equals to 10 minus 90. कितना आ रहा है जी? minus 90 minus 2 आ रहा है क्या? minus 92 by 3. Is it? 3x plus 2 f of minus 9x, is it? It is plus 2, no? अंकित देखना 4 minus 2 plus 2 होगा ना. हमने 2 minus 1 किया, equation 2 minus equation 1, तो 4 minus 2 2 होगा ना. ठीक है, तो 10 पुट करेगा तो ये वाला आंसर. राइट, ओके एवरीवन. मेहुल कुछ लिख नहीं रहा हो क्या? समझ में आ रहा है? कार्तिक जबरदस्ती ओके नहीं लिखना. यू कैन आस्क मी टू रिपीट. वी आर इन नो हरी. आई कैन गिव यू एम्पल नंबर ऑफ क्लासेस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, बट वी आर इन नो हरी. Functions in time I used to teach for only 2 hours. 2 घंटे का एक क्लास में पूरा सेट्स, पूरा रिलेशन, फंक्शन सब करते थे हम लोग. आपको हमने सेट्स पर एक क्लास दिया, टोटल फंक्शंस पर टोटल 4 क्लासेस दिया, ताकि आपके पास एनफ टाइम हो और मैं बहुत स्लो चलूं ताकि आपको सब चीज समझ में आए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काइंड है. मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग लिखो क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखो. fx plus 3 times of, let's see how smart you are to do this question which is of similar kind, 2x plus 1 by x. They are asking the value of f of 2. Go ahead.
Your time starts now. Just 1 minute. Okay, your time is up. Any answer? No. Disha, are you there in the class? Yes, sir. Did you try this? I'm trying. Okay, what's your thought process? Don't you think this question is very similar to the previous one, in which f of minus x had to be eliminated because it was hindering my progress on f of 10. I wanted to find f of x. In the like manner, this particular question can be done. Rewrite this question. Here, what did we do? 11 by 16. Alright. What did we do here? Here we replaced x by minus x in the entire equation. You know, Abhishek, Karthik, some people will only replace x by minus x only in the left hand side. Don't do that. पूरा ही करना है, because आप you cannot do only on any work on the left hand side alone. Here I want 1 by x वाला function to be eliminated. So I will replace x by 1 by x in the equation. लिखो, replace x by 1 by x in the equation. As such, this is my equation number 1. My next equation becomes f of 1 by x. Now this fellow becomes f of x. जहाँ x है वहाँ 1 by x, so this becomes 2 by x. जहाँ 1 by x से ये ऊपर चला जाएगा, this will become x. Now in order to eliminate f of 1 by x, my school level knowledge says that multiply the second equation by 3. सर यही नहीं समझ में आता है सर, आप कब कहाँ क्या मल्टीप्लाई कर देते हो भाई. मेरा टारगेट में हमेशा सोचता हूँ कि मुझे करना क्या है, मुझे इस पोर्शन को एलिमिनेट करना है. तो यहाँ पर भी वो वाला टर्म लाएगा तब तक. तो यहाँ सिर्फ 3 भी तो मैं नहीं लिख सकता, मुझे पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देयरफॉर दिस बिकम्स 3, this 3 becomes 9, this 2, this thing multiplied by 3, this becomes 6, and this x multiplied by 3 becomes 3x. सर मुझे ना हर स्टेप लिख के बताओ. मैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहा कि मैं हर चीज़ लिखूं. ये इसके बाद तो आपका काम है, फिर भी मैं कर देता हूँ because I am a nice person, huh? Anyway, what I'll do, I'll subtract 2 minus 1, second minus first. तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा. 9 minus 1 fx तो हो जाएगा 8 times of fx. ध्यान से देखो जी. अब ये देखो 6 by x minus 1 by x will become 5 by x plus 3x minus 2x will become x. ये जो 8 है राइट हैंड साइड में डिवाइड में चला जाएगा, इधर से मैं एलिमिनेट कर दूंगा. मुझे चाहिए f of 2. नाउ इन दिस इक्वेशन जस्ट पुट x is equals to 2. सो क्या हो जाएगा, आंसर निकालो. 5 by 2 plus 2 divided by 8. सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ. 9 by 16. Wonderful. So answer is 9 by 16. Right, okay. Everybody. Simply write okay. Okay means you have copied, understood, and you're ready for the next.
Some of you get tired in just 1 hour. I see you start well. 1 घंटे के बाद आप थक जाते हो. There are people who are studying for 6 hours, 8 hours with a break of chai break or tea break or lunch break only. But कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप लोग तो इतना प्रेशर रहता. यहाँ तो मैं आप लोगों के लिए बहुत लाइट कर देता हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो क्वेश्चन. f of x is given as 3x cube plus 2x square plus x plus 1 by x plus 2 by x square plus 3 by x cube. मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ. ये सारे टाइप्स है जो आ रखे हैं. f of 1 by 2, f of 3 divided by f of 1 by 3 plus dot 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 f of 9 divided by f of 1 by 9 का वैल्यू क्या होगा. Giving you 1 minute to think on this, how to go ahead. Ouch. को बेच दो. Okay, time is up. Any update? 8 आएगा सर. 8 आएगा. क्या किया अंकित? f by 2 और f by half जो है ना, उसका वैल्यू निकाल लिया, वो 1 आएगा. ठीक है, मतलब वैल्यू नहीं निकाला, हाफ ही तो है ना वो. हाँ हाफ है. तो अच्छा, इसको ऊपर नीचे लिख के साथ ही पता चल जाएगा कि वो प्रॉपरली कट हो जाएगा. टर्म्स एकदम सेम है. चलो बढ़िया. एक्चुअली आप इन्होंने शायद देखा होगा कि ये 3 और ये 3, खाली x नीचे है और 3 कांस्टेंट वाला ऊपर ही है. मतलब ऐड करना इनको आसान लगा होगा. तो यू हैव ऐड डिवाइड नहीं किया मैं, बस x अच्छा की लिख जगह 2 का वैल्यू डाल दिया. x देख लिया कि टर्म्स दिया. सेम है. करेक्ट, सेम टर्म आ जाएगा. That's good. Very good. So I expect others also to think in the same line. People, you can see that in the question. आप ध्यान से समझो, इसको सोचते कैसे है. बहुत लोग लाखों क्वेश्चन बना लो, सोच नहीं पाते हैं कि भाई अप्रोच क्या है. क्योंकि आप ना जो चाहिए उसको अच्छे से स्टडी नहीं करते. आपको चाहिए ऊपर f of x यहाँ पे दे रखा है, नीचे चाहिए f of 1 by 2, 1 by 3, मतलब f of 1 by x चाहिए. Simply replace x by 1 by x and find out f of 1 by x and see what happens. If you put x is equals to 1 by x, you will see this becomes x by x cube, this becomes 2 by x square, this becomes 1 by x, and this fellow will become x. This fellow will become 2x square and this fellow will become 3x cube. अगर इधर से देखो और इसको इधर से देखो, they are the same terms, 6 terms and they are alike. Alike का मतलब क्या सर? कि fx जो है f of 1 by x के बराबर है. यानी f1 पुट करो तो 1 by 1, f2 पुट करो तो f2 will be equal to f of 1 by 2. In the like manner ये सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब सबका रिजल्ट आना है 1. 1 से लेकर के 2 से लेकर के 9 है. 2 से लेकर के 9 8 टर्म्स होता है, 8 टर्म्स, and each term value is 1. Therefore your total answer will be 8.
Right, okay, if you have understood. Make it fast. Abhishek says repeat. Abhishek, looking at the requirement, I saw that in the numerator there are fx, fx, fx का f2 है, f3 है. In the denominator, below each term is the reciprocal of that x. As such, I simply found out f of 1 by x क्या होगा. As such, what is the way of finding f of 1 by x? Simply wherever you see x, replace that x by 1 by x. Having done that, I am getting the entire right hand side of f of 1 by x same as f of x. It means f of x is equals to f of 1 by x. So ऊपर वाला नीचे वाला portion same, सारा कट जाएगा. So 1 1 1, each term will give me 1. How many terms are there? From 2 3 4 till 9 there are 8 terms. So 8 into 1 will be 8. That's it. Right, okay, if you have understood. Everybody is not writing okay. So either you are a dummy participant, बस लॉग इन करके घर पे अपने भाई को दे दिया है मोबाइल कि भाई बस फोन पकड़ा रहना, और टीचर कुछ पूछेगा तो कुछ मत बोलना. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इसका वैल्यू क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सर वो क्या लिखा है आपने? 4 to the power x divided by यस, 2 plus 4 power of x. 2 plus 4 power of x, right? तो मतलब वही ना. सर आंसर 96 आएगा क्या? 96 आएगा. नहीं, रुको. ठीक से देखो. ओके, योर टाइम इज अप. सर 1 मिनट तो बड़ा जल्दी खत्म हो जाता है सर. मैं तो क्वेश्चन ही कॉपी करता रहता हूँ, 1 मिनट खत्म हो जाता है. अरे तो थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा ना आप लोग को. चलो, अगेन लेट अस सी आवर थॉट प्रोसेस. Here when they say 1 by 97, 2 by 97, 3 by 97, 96 by 97, stuffs like that, fx is given. What do I do? I mean, if I get f of minus x, क्या आएगा? 4 power of minus x plus 2 plus 4 power of minus x. इसको सॉल्व करना है. ये वाला क्या हो जाएगा? 1 2 into 4 power of x plus सर 1. हाफ का पावर माइनस x आएगा. हाँ, हाफ का पावर माइनस x. हाफ का पावर माइनस एक्स. क्या है ये आएगा 4 to the power minus x divided by 2 plus 4 to the power minus. अच्छा, एक मिनट यार, एक मिनट. अगर मैं देखूं कि जो फर्स्ट टर्म है और प्लस लास्ट टर्म, आई थिंक 1 होगा. एग्जैक्टली, दोनों को ऐड करने से, है ना, दोनों को ऐड करने से. इसका मतलब 1 by 97 प्लस 96 by 97 का वैल्यू है 1. इसका मतलब क्या? 48 आंसर है.
हाँ, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 1 ना, 1 या हाफ। तो इसका मतलब कि ये टर्म और ये टर्म, अगर किसी को मैं x पकड़ता हूं तो ये वाला 1 माइनस एक्स हो जाएगा। समझे? अगर मैं x पकड़ता हूं तो इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसका मतलब कि fx दे रखा है, मैं चलो निकाल लेता हूं f ऑफ 1 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर ऑफ x की जगह 1 माइनस एक्स, 2 प्लस 4 टू द पावर ऑफ 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखना जी, इसको जरा सॉल्व करो। ये 4 इंटू 4 पावर ऑफ माइनस एक्स, 2 प्लस 4 इंटू 4 पावर ऑफ माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना, आई मीन डिवाइडिंग बाई 4 पावर ऑफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 4 पावर ऑफ एक्स प्लस 4। सॉल्व कर लो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 बाई 4 पावर ऑफ एक्स प्लस 2। करेक्ट? तो यू कैन सी दैट ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन 1 आ रहा है। क्यों दिशा? 4 पावर ऑफ x प्लस 2 प्लस 4 पावर ऑफ x प्लस 2 बाई 2 प्लस 4 पावर ऑफ x, ये पोर्शन और ये पोर्शन। अगर आप एलसीएम लो, 2 प्लस 4 पावर ऑफ x, ऊपर भी आ जाएगा 2 प्लस 4 पावर ऑफ x, 1 आ रहा है। सर इससे क्या फायदा हुआ सर? यार इससे ये मुझे समझ में आ गया कि अगर अंदर वाला टर्म का सम 1 है तो दिस फंक्शन प्लस द लास्ट फंक्शन इज समिंग इक्वल टू 1। अंदर वाला भी 1 है और फंक्शन प्लस दिस फंक्शन f ऑफ 1 माइनस एक्स मीन्स f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स का भी वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, यानी टोटल कितने टर्म्स है मैं निकाल लूंगा और आंसर उसका हाफ होगा, क्योंकि इसको प्लस इसको मिला के 1 है, तो नेक्स्ट और नेक्स्ट मिला के भी 1 होगा। कितना टर्म है? 1 से लेके 96 टर्म्स है, तो 96 टर्म्स है और एकक का पेयर बन रहा है 1, सेकेंड और 95 भी बन रहा है 1, तो आंसर क्या होगा? 96 बाई 2 48। करेक्ट अंकित? करेक्ट मेहुल राज? ये ना एक और प्रोसेस से इजीली बन जाएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ये एक और प्रोसेस से ना इजीली बन जाएगा सर। हाँ हाँ बताओ ना। ये जो 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x है ना, ये अल्टीमेटली जाएगा 1 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 टू द पावर 2x, ठीक है? अच्छा, सो सिंप्लीफाई कर लिया आपने? हाँ, क्या आया सिंप्लीफाई करके? 1 टू द पावर 2x। 1 टू द पावर ऑफ 2x? हाँ, नहीं, 1 टू द पावर ऑफ 2x। सॉरी एक मिनट, ना ना ना, हाँ आ रहा है, 1 टू द पावर 2x आ रहा है सर। एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, जो आप बोल रहे हो ना, मैं सॉल्व करके आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। 4x एक्चुअली दिया हुआ है 4x बाई 2 प्लस 4x ना। हाँ, इसको आप सॉल्व कर रहे हो शायद, तो 2 के टर्म्स में कर रहे हो। 2 टू द पावर ऑफ 2x, ये 2 है, ये है 2 टू पावर ऑफ 2x, ठीक है? उसके बाद क्या कर रहे हो? 2 पावर ऑफ 2x से डिवाइड कर रहे हो। 2 को कॉमन ले लेते हैं सर। हाँ, 2 टू द पावर 2x से डिवाइड कर दो, वो भी चलेगा। हाँ, तो 1 आएगा, इधर प्लस 1 होगा, और 2 डिवाइडेड बाई 2 पावर ऑफ 2x, ये हो जाएगा 2 टू पावर ऑफ 1 माइनस 2x। हाँ, ये आएगा 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 1 माइनस 2x प्लस 1, ये आएगा। सर मेरा ना कैसे बन गया पता नहीं सर, लेकिन 48 आ गया था। नहीं दैट्स फाइन, बट अभी जो आप रिजल्ट बोल रहे हो मुझे बताओ फिर से, कौन सा रिजल्ट fx क्या आ रहा है आपका? fx मेरा यही वाला आ रहा था, ये 1 डिवाइडेड बाई वो वाला। हाँ हाँ ठीक है, ये वाला आ गया ना। उसके बाद आपने क्या किया बताओ? उसके बाद मैंने 1/97 पुट किया x की जगह, और एक बार 96/97 पुट किया, उस और हिसाब से तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने x की जगह आपने पुट किया 1/97, और एक बार आपने x की जगह पुट किया 96/97। चलो f
1/97 निकाल लेते हैं। तो 1/97 पुट करने में तो डर लग रहा है मुझे, फिर भी लिख लेते हैं 1/1 - 2/97 + 1, और उसके बाद f ऑफ 96/97 2 है ना, 96/97, ये हो जाएगा 1/2⁻1 - 2 × 96/97 + 1। छोड़ दो सर, फ्लॉप हो जाऊंगा मैं, छोड़ दो। मेरा कैसा आपको पता नहीं अच्छा, सर, लेकिन ये नहीं फालतू कोई का बात नहीं। ऐसा है कि ये दोनों वैल्यू को फिर आपको ऐड करने में परेशानी होगी, समझे अंकित, क्योंकि ना एक्सपोनेंट पे बहुत काम हो गया, इसी कारण इसको आप अवॉइड करो। सर मैंने कहा गलती किया था पता है, हाँ मैंने ना कैसे भी करके ना हाफ निकाल लिया था, ठीक है, 4/2 + 4x = हाफ निकाल लिया था, तो उधर से आ गया था, पता नहीं कैसे किया। अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया ये वाला क्या मैंने बताया? हाँ समझ, हाँ हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। Are you guys there in the class, Ankita and all, Disha? धीरे धीरे लोग कुछ लोग 1 घंटे का क्लास करते हैं, 1 घंटे में भाग जाते हैं। हाँ 2 1.5 घंटे में कैसे थक सकते हो आप लोग? चल क्वेश्चन लिखो, होमवर्क लिखो, टाइम हो चुका है, होमवर्क लिखो। होमवर्क बनाओगे गुड स्टूडेंट्स के जैसा, लिखो f(x) and g(x) आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो फंक्शन है, दोनों ही क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। f ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है g ऑफ 2 के बराबर, दैट्स इक्वल टू 0। f of 5 is given g of 7, that's equal to 0. f of 3 is equals to 5 and g of 4 is equals to 3. Find f of 8 multiplied by g of 8. Important है जी इस टाइप का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसको कॉपी कर लो। हाँ इमेज भी खींच सकते हो इफ यू थिंक यू आर वेरी हंग्री। जल्दी कॉपी करो, एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इसी का सब पार्ट लिखोगे। ये हो गया ए निकालोगे, नेक्स्ट बी निकालोगे कि f(x) इज मैक्सिमम एट x = 1 एंड f मैक्सिमम का वैल्यू है 3। f ऑफ 0 दिया हुआ है 1। फाइंड f ऑफ 10। ये कैट 2007 का क्वेश्चन है। I repeat, f(x) and g(x) are two quadratic equations. f2 दिया हुआ है, g2 = 0, f5 g7 = 0, f3 का वैल्यू है 5, g4 का वैल्यू है 3। फाइंड f of 8 into g of 8। सेकेंड क्वेश्चन, f(x) is maximum at x = 1, मतलब मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है 1 पे, एंड मैक्सिमम वैल्यू का भी है 3, और f0 है 1। f of 10 क्या होगा? That's it for today. Write copied everyone. Write copied. Jaldi jaldi. Yeah, please try these two. They are very important. Screenshot taken. That's fine. Chal. Thank you for today and have a good day. We will meet tomorrow, I guess. Right, tomorrow class from 7:30, right? Chal. यस सर। Okay.